तो समझ में आ रहा है। Okay, so let's start. So in the last class, we have discussed about the mechanism of laser. So in this mechanism, what we are trying, so we have, this is like the ground state, and in this ground state initially we had n1 numbers of atoms. These are n1 atoms here. This is excited state E2, and the gap between this E2 minus E1, as we have assumed this is equivalent to 1 photonic energy. So when we give photons to the atoms of this ground state, then these atoms, so this is the total energy given up to delta T time. So through absorption transition, so first step through absorption transition, out of n1 atoms, n2 atoms are excited at the higher energy level. And this is a transition which is because of this absorption, that's why this is known as absorption transition. And the total number of absorption transition NAB, it is governed by three parameters. One is this energy, that energy, and second, up to the time the energy is given, delta T, as well as this N1, the total number of atoms present over here at the ground state. So N1, and we have used here one Einstein coefficient, that is B12, which gives the total probability of absorption transition. So here, this is the first type of transition, which is known by three parameters: the energy given, the time, as well as N1, and B12 is one coefficient. At higher energy level, the lifetime is only 10 to the minus 8 seconds. यदि 10 to the minus 8 seconds में हमने किसी प्रकार कोई इसमें एक्स्ट्रा रिएक्शन नहीं किया, then these atoms at higher energy level come back to ground state by emitting photons, and this is a spontaneous process. So the second type of transition is known as spontaneous transition, and the total number of spontaneous transition and SP. This is controlled by only two parameters because there is no energy term here. So this is delta T as well as total number of atoms present at higher energy level N2 with another Einstein coefficient, that is A21. So this 1, 2, 2, 1, this actually gives the direction of transition. And here we get abundant numbers of photons, but these photons are useless because all these photons are random, moving in random direction. So there is no specific characteristic, specific properties of these photons. That's why all these photons emitting through this spontaneous transitions, these are useless photons. One cannot use these photons as a laser, in form of laser. So why? What is the reason behind this? The reason is a simple one, because this process is spontaneous. This is uncontrolled. So because of this uncontrolled process, all these photons are uncontrolled. So if we want to use these photons as a laser, so before this 10 to the minus 8 seconds, we have to control this process. We have to control this transition. So in order to control this transition, we provide this external photon to these atoms of excited state. But remember this is before 10 to the minus 8 seconds, because after 10 to the minus second, automatically the atoms of excited state will start come back to ground state, and the spontaneous process will start. So before 10 to the minus 8 seconds, when we give photons to the atoms of this excited state, then another transition it is started, and that is known as stimulated transition. And in this stimulated transition, we get two photons per atom, and these two photons are parallel. So this is stimulated transition. So the third type of transition is known as stimulated transition, because this is stimulated process. And this now total number of stimulated transition. Again, this governs by three parameters. One is this energy. So at higher energy level, how much energy we are giving, the total numbers of transition we have got. So this is Q nu, energy given, and the delta T, that is the time up to the energy is given, as well as this N2, the total number of atoms present at higher energy level. And here again, we have to use another Einstein coefficient, that is B21. So we have three coefficients, B12,
be A21 and B21, and simultaneously this is known as Einstein's A-B coefficient. So this is Einstein's A-B coefficients, and the physical significance of these coefficients are: this gives the total probability of absorption transition, this gives the total probability of spontaneous transition, and this B21 gives the total probability of stimulated transitions. So, after this stimulated transition, one chain reaction started. As we have described in the last class. So, what is happening here? We have one photon. We are giving one photon to one atom, and after stimulated transition, this one photon will one atom will give two parallel photons. So these two parallel photons are moving in the same direction, and again these two parallel photons will stimulate two more atoms, and these atoms will give two more photons. So this will give two photons, this will give two photons, so total four photons we will have, and these four photons will further stimulate four atoms, and each atoms will again give two photons. So these are the 8 photons, and now these 8 photons will stimulate 8 more atoms. So one will get 16 photons, and 16 will further give 32 photons, and 32 will give 64, 128, 256, 512, and then in this binary order up to 1024 and so on. So numbers of photons increases in the binary orders, multiple orders, and we will gauge so high numbers of photons, and all these photons are parallel photons, and the distance between these photons are decreasing as numbers of photons increasing, and ultimately after superimposition we get laser. So this is the mechanism of obtaining laser discussed up to the last session. Okay, so what यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर NAB जो ग्राउंड स्टेट पे जो एटम्स हैं ये NAB जो कि एब्सॉर्प्शन ट्रांजिशन है, इसके थ्रू एटम्स हायर एनर्जी लेवल पे जाता है, तो अल्टीमेटली आइदर थ्रू दिस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और स्टिमुलेटेड प्रोसेस इसको वापस ग्राउंड स्टेट में आना होता है. So what we will have, this NAB is actually equal to NST plus NHT. सिंपल से थोड़ा सा छोटा सा मैथमेटिक्स कर लेते हैं, और ये एक मात्रा इसमें डेरिवेशन है. तो let's start simple calculation. So let's put the value of these terms. So I should write here. So this NAB is equal to NST plus NHT, and then this NAB is B12 Q nu delta T N1 is equal to A21 delta T N2 plus B21 delta T Q nu delta T N2. And now solve it for Q. इसको Q के लिए solve करो तो कितना आता है बता दो मुझे. Let's solve it for Q. Here, जिसको हो जाएगा तुरंत बताना. Don't waste time. Just put this value. Absorption transition, it is equivalent to total number of spontaneous transition plus total number of stimulated transition. ये वैल्यू को यहाँ पे पुट करो और Q के लिए solve करो इसको. There is two Q terms. Here, this is that terms, and this is the terms. कितना आता है जल्दी बताना.
Sir, A21 upon So this is just I am just writing the answer and compare your results. So this is A21 by B21 B21 into N1 by N2 minus 1. upon Sir, into into का रखो इसको सर डिनोमिनेटर में so मल्टीप्लाई this is होगा. the terms ये कैंसिल हो गया मैं N2 से डिवाइड कर A21 दिया हूँ. by B21 ऐसा डिवाइड कर दियो so this is N1 by N2 minus 1 ये चेक करो तो इस तरह से आ रहा है if this B12 is equal to B12 so this Q is equal to H1 upon B21 upon N1 by N2 minus 1 if we take B12 is equal to B21 ये चेक करो तो कितना आ रहा है क्या सर B21 भी नीचे आएगा. और नीचे लाओगे नहीं इसको बराबर रखें तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है चेक दिस रिजल्ट आ रहा है क्या यस सर आ रहे हैं. आ रहा है ना ये बाकी लोगों से यस सर. सभी से यार सिंपल सा ये है इसको इधर ट्रांसफर किए q को कॉमन निकाले यहाँ पर b12 और b21 है इसको हमने आइडेंटिकल लिख दिया तो यहाँ पर ये कॉमन आ जाएगा b21 के फॉर्म में तो जो कि a21 है तो यहाँ पर ऊपर भी लिख दिया इसको a21 by b21 और इसमें n2 से क्योंकि यहाँ पर n2 ये था तो ओवरऑल को अपन n2 से को डिवाइड कर देते हैं तो दैट विल बी n1 by n2 minus 1 so this is equation number 1 okay so this n1 and n2 ये n1 जो है वो क्या चीज है this n1 is the total number of atoms present here and n2 this is the total number of atoms that are there और ये n1 और n2 बहुत अधिक मात्रा में होता है दो चार नहीं होता है abundant होता है इसलिए हम यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं यहाँ पर मैंने हालांकि इसको एनर्जी के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है यहाँ पर एनर्जी E1 है यहाँ पर एनर्जी E2 है लेकिन टेम्परेचर को भी अवॉइड नहीं कर सकते तो यहाँ पर टेम्परेचर और एनर्जी के साथ इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो मैं एक सिंपल सा एक स्टैटिस्टिक यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो बाय यूजिंग बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स by using Boltzmann statistics Boltzmann statistics का यूज करने से this n1 it is proportional to exponential of E1 by kT ये थोड़ा याद करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो बोल्ट्जमैन ने ये बताया कि अगर हम टेम्परेचर और एनर्जी को पैरामीटर लेकर के चले तो एटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है so this is a term given by Boltzmann and similarly this n2 this is proportional to exponential of E2 by kT हमें यहाँ पर चाहिए n1 by n2 so this implies n1 by n2 it is equal to प्रोपोर्शनलिटी था आपने उसको डिवाइड किया तो कांस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी so this is exponential of E2 minus E1 by kT since E2 minus E1 is nothing but h nu हम इन दोनों के बीच का जो गैप है इस गैप को हम एक फोटॉन के बराबर लेके चलते हैं so this E2 minus E1 is equal to 1 photonic energy h nu so this implies n1 by n2 is equal to exponential of h nu by kT check this इस कैलकुलेशन को चेक करो खुद करके देखो और चेक करो ये सही है कि नहीं Let this case Boltzmann constant remember this यस सर. Gundidhi is it okay Devangi बताते जाओ जल्दी जल्दी तुरंत कमेंट बॉक्स में
Yes, अपना sir. कमेंट लगा कर दे दिया करो। सो इज इट ओके? सो यहाँ n1 और n2 इसको ये किया, सो दिस इज माइनस साइन, ये ऊपर चले जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। सो e2 - e1 आई टेक और e2 - e1 को हम h के बराबर लेते हैं, इस वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दी इस इक्वेशन। अब इसको यहाँ पे पुट कर दो, हमारे पास ये q न्यू क्या हो जाएगा? सो दिस q न्यू इज इक्वल टू, हां बट बिफोर दिस यहाँ मैंने एक टर्म में यहाँ पे लिखा है मैंने b12 इज इक्वल टू b21, सिंस ऐसा करके मैंने मान के लिखा है, लेकिन ऐसा डायरेक्टली लिखने से पहले मुझे इसका रीजन देना पड़ेगा कि व्हाई आई एम राइटिंग दिस b12 इज इक्वल टू b21। डायरेक्टली आप ऐसा मैथमेटिक्स में लिख के बिना फिजिक्स बताया तो वो काम नहीं चलने वाला, आपको इसके फिजिक्स बताना होगा। तो इसका रीजन यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, और ये हर बार ध्यान में रखना कि दोनों कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन जो है वो बराबर कब होगा। देखिए अगर हम ध्यान से इसको देखें तीनों इक्वेशन में, तो मैंने जो एनर्जी दिया है इस एनर्जी को भी मैंने आइडेंटिकल रखा है, जितना टाइम तक मैंने एनर्जी दिया उसको भी आइडेंटिकल रखा है, जितना टाइम तक मैंने ये दिस इज फॉर द सेक ऑफ सिंपल कैलकुलेशन, और जितने टाइम तक मैंने सिस्टम को फ्री छोड़ा इसको भी मैंने आइडेंटिकल रखा है। ओके, तो अगर हम फिजिकल फेनोमेना को आइडेंटिकल रखें, फिजिकल कंडीशन को आइडेंटिकल रखें, तो ये b12 जो है वो बराबर होगा। तो यहाँ पे यह राइट आंसर से if all the physical conditions temperature, pressure, physical conditions में that if all the physical conditions are identical, बराबर हो, कितनी एनर्जी दिया जा रहा है, so if all the physical conditions are identical, then the total probability of ये किससे corresponding है? This is corresponding to absorption transition, this is corresponding to stimulated transition. So the total probability of absorption transition will be equal to stimulated transition. That's right. Yes. So b12 can be written as equal to b21, क्योंकि ये probability बताता है, इसका significance हमने बताया था। What this gives? This gives the probability of absorption transition. This gives the total probability of stimulated transition. अगर मैं इन दोनों को बराबर लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये दोनों फेनोमेना, दोनों की probability जो है आइडेंटिकल है, और ये आइडेंटिकल कब होगा? जब सारे फिजिकल कंडीशंस आइडेंटिकल होंगे। So if all the physical conditions are identical, then the total probability of absorption transition will be equal to the total probability of stimulated transition. That's why we can write this. Now let us put n1 by n2 from equation 2 to equation 1. So from equation 1 and 2 क्या होगा आउटपुट बताओ जल्दी। So from equation 1 and 2, add up q nu, that q nu is equal to a21 by b21 upon exponential of h nu by kg minus 1. This is equation 8. सिंपल सा बच्चों वाला मैथ्स है, ठीक है। सिर्फ वैल्यू पुट करना था और ये आउटपुट के फॉर्म में हमारे पास ये आया। अब मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन यहाँ लिखने वाला हूँ जो तुमको याद करना होगा, क्योंकि उसका डेरिवेशन पॉसिबल नहीं है, उसके डेरिवेशन के लिए लंबा चौड़ा टाइम लगता है। दैट एक्सप्रेशन दैट वाज ओरिजिनली गिवन बाय मैक्स प्लैंक, ये तुमको थोड़ा याद रखनी पड़ेगी। तो दैट एक्सप्रेशन गिवन बाय मैक्स प्लैंक्स रेडिएशन, सो फ्रॉम Planck's hypothesis of radiation, प्लैंक ने अपने ओरिजिनल रेडिएशन का जो हाइपोथेसिस जहाँ पे दिया था कि क्वांटम नेचर होता है, डुअल नेचर होता है, और उस डुअल नेचर में एनर्जी जो है किस तरह ये होगा, ये क्वांटाइज्ड होता है। ये सारे प्रोसेस के बाद उन्होंने कैलकुलेट किया था कि पर यूनिट टाइम पर किसी लाइट सोर्स से कितनी एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी released that is q nu delta nu, but very small span of time. This is equal to
8 pi h nu cube by c cube delta nu exponential of h nu by kt minus 1. Check this. एक बार फिर से देख लें यहाँ पे क्या हुआ. This is q nu delta nu is equal to 8 pi h is Planck constant nu cube with the frequency upon c cube d cube upon exponential of this denominator term exponential of h nu by kt minus 1, and this is equation number 2. So this is our original equation given by Max Planck. अब इन दोनों को कंपेयर कर दें. So by comparing equation 3 and 4, what we'll have, this is a21 by b21 is equal to 8 by h nu cube by c cube. ये रिलेशन सबके पास आनी चाहिए. ये छोटा सा डेरिवेशन कभी कभी पूछा जाता है कि a21 और b21 के बीच का डेरिवेशन जो होता है वो 8 by h nu cube by c cube के बराबर होता है. इसके लिए इतना पापड़ बेलने की जरूरत है. एक बार चेक करो कैलकुलेशन और ये लाओ. ये आता है कि नहीं आता मुझे बताओ. मैंने गलत तो नहीं किया. सर ये c की पावर में 3 dv है. हाँ ये है देखो 8 by h nu है. nu not v. v cube upon c cube. And this is dv जो यहाँ पे v, this is not v, this is nu. जो यहाँ पे है वही है डेल्टा न्यू या d न्यू. दिस इज d न्यू. भाई जब इंटीग्रेशन करते एक छोटे से सेगमेंट को लेते हो ना तो ऐसे छोटे से सेगमेंट वाले पार्ट को लेकर के चले हैं. बाद में जैसे किसी अगर कोई ब्रॉड इसमें लेना है तो हम इसको इंटीग्रेट करके ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं. ओके अब इसको यहाँ से ऐसा कैंसिल करके डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं. नो प्रॉब्लम. तो ये कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पर ये कंपेयर करें तो दिस इज इक्वल टू दिस. ओके तो इसमें जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में ये रहता है कि डिफाइन आइंस्टाइन्स ए बी कोएफिशिएंट, write their physical significance and prove that this h1 by b21 is equal to 8 pi h nu cube upon c cube. ये प्रूव करने के लिए आता है. 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है तो ये तुमको एक साथ यहाँ तक बनना चाहिए. ओके क्लियर यहाँ तक? यस सर. ओके चलिए सो आगे बढ़ते हैं. तो ये तीन तरह ये पूरा मैकेनिज्म हो गया. इन कोएफिशिएंट का आपस में रिलेशन हो गया. अब हम इसको एक्सपेरिमेंटली लेजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. यहां तक एक चीज तो क्लियर है. इसको एक्सपेरिमेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा देखिए. एक चीज क्लियर है कि अगर बैटरी हमको लेजर चाहिए, हाई इंटेंसिटी का आउटपुट चाहिए, तो हमें प्रैक्टिकली किसी तरह से इस स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा. क्योंकि अल्टीमेटली ये तो बेस है. जब तक एब्सॉर्प्शन ट्रांजिशन नहीं होगा, स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन नहीं होगा, मतलब ये तो होना जरूरी है. लेकिन इसके साथ साथ there is some probability of this spontaneous transition also. तो ये तीनों के तीनों को एक साथ मैकेनिज्म में लिया जाता है. बट प्रैक्टिकली अगर हमें लेजर चाहिए तो हमारा ध्यान जो है वो इसमें कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए. जितनी ज्यादा मात्रा में स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन होगा उतना ही अच्छा लेजर आपको मिल सकता है. तो प्रैक्टिकली हमें किसी तरह से इस स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन को बढ़ाने की जरूरत है. अब क्वेश्चन ये है कि हम इस स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन को कैसे बढ़ाएं. अब इसके लिए फिर से थोड़ा सा मैथमेटिक्स का हेल्प ले लें. बिकॉज़ मैथमेटिक्स इज आवर टूल. तो लेट अस ट्राई टू एनहांस to increase the numbers of stimulated transition. So let us think how we can. Let us compare this stimulated transition with. So to get some idea, let us compare this total number of stimulated transition with total number of absorption transition, and the total number of stimulated transition with total number of spontaneous transition. हमारा टारगेट है हम किसी तरह से इस स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन को हम क्या ओके किसी तरह से हम नंबर्स ऑफ स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन को बढ़ाना चाहते हैं.
तो इसके लिए हम थोड़ा सा आइडिया इससे मिल सकता है जब हम इस NH2 को AB के साथ और SP के साथ कंपेयर करेंगे। So let's write the expression NH2 is what? That is stimulated transition. So for stimulated transition we have B21 multiplied by this energy term multiplied by delta T multiplied by N2. AB that AB is equal to B12 ये 2 1 और 1 2 में डिफरेंस है और बाद में हम बराबर कर देते हैं इसको that is energy term delta T multiplied by N1 ये इक्वल टू हो जाएगा that is N2 by N1 again I am writing here since B12 is equal to B21 again I have to write this region if all the physical conditions are identical then this coefficients will be identical similarly that B21 Q nu delta T N2 by this NSP is A21 there is no energy term delta T N2 ये cancel हो जाएंगे and this is equal to B21 by A21 multiplied by Q nu. This is equation number 1. This is equation number 2. Check करो तो इसको भी is it okay? कैलकुलेशन चेक करो भाई उस पर अंधविश्वास मत करो। मानसी यादव नेहा यादव मानसी यादव ये यादव लोग जो हैं क्लास छोड़ के भाग गई क्या? गिव द कमेंट्स और द रिप्लाई। Is it okay? Check this. यहां तक किसी को कोई डाउट? सृजन सृजन ओके तो देखिए सही है मेरे ख्याल से हाँ सबने लगभग अब इसको कंफर्म कर लिया। सो दिस NH2 upon NB is equal to N2 by N1 if you are considering this B1 is equal to B21 and this NH2 upon NSP it is equal to B21 by A21 multiplied by Q2। अब इससे थोड़ा सा कुछ मैथमेटिक्स कुछ कंडीशन हमको मिल सकता है। हमारा टारगेट क्या है? हम NH2 की वैल्यू को ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं। तो इन दोनों से क्या चीज क्लियर होगा देखिए लेट अस ट्राई टू थिंक in order to have NHT of greater value हम ये चाहते हैं कि टोटल अगर आप स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन ज्यादा से ज्यादा हो मींस ये न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा होनी चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगा? सो हियर ये NHT का मान ज्यादा कब हो सकता है? जब in this term N2 must be greater than N1 means higher energy level पर lower energy level से ज्यादा एटम्स होनी चाहिए। तो this N2 is greater than N1 इस कंडीशन से ये लग रहा है हम NHT की वैल्यू ज्यादा कब हो सकता है? जब N2 का मान N1 से ज्यादा हो। सेकंड अकॉर्डिंग टू दिस here this is the coefficient जो सिर्फ हमें प्रोबेबिलिटी बताता है हालांकि ये फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है जिसको हम लोगों ने अभी जस्ट प्रूव किया। सो दिस B21 upon A21 multiplied by Q nu हम चाहते हैं कि NHT का मान ज्यादा से ज्यादा हो तो ये Q की वैल्यू जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। ये जो एनर्जी दिया जा रहा है वो एनर्जी ज्यादा से ज्यादा दिया जाना चाहिए। सो these two conditions N2 must be greater than N1 and this Q ये दोनों कंडीशन जो है वो फुलफिल होना चाहिए। सो ये दोनों कंडीशन so here the total number of atoms it had state must be more than ground state so ground state से ज्यादा एटम्स होनी चाहिए और सेकंड कंडीशन ये है
कि ये जो एनर्जी वैल्यू है वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। तो एनर्जी वैल्यू must be much more, and these two conditions simultaneously, दोनों essential condition है, and these two conditions are known as लेजर ऑब्टेनिंग कंडीशंस। इसको लेजर ऑब्टेनिंग कंडीशंस कहा जाता है। तो अगर आपको लेजर चाहिए तो ये दोनों कंडीशंस जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। हायर एनर्जी लेवल पर एटम्स का मान जो है वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए विद कंपेयर टू लोअर एनर्जी लेवल, और जो एनर्जी दी जा रही है क्यू न्यू ये ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगा तो हमको एक्सपेरिमेंटली लेजर मिल सकता है। अब इस कंडीशन को कैसे फुलफिल करना है, नेक्स्ट टारगेट हमारा यही होगा। हमने कंडीशन तो मैथमेटिकली अटेंड कर लिया, बता दिया भी ये दोनों कंडीशन हमारे पास है। इन दोनों कंडीशन को अगर हम फुलफिल किसी तरह से अगर कर सकते हैं प्रैक्टिकली, देन वी विल गेट लेजर। अब क्वेश्चन ये है कि ये दोनों कंडीशन कैसे फुलफिल होगा, लेकिन उससे पहले इस कंडीशन को मैं थोड़ा सा डिस्कस करूं। कुछ टर्मिनोलॉजी जो हम लोग लेजर में यूज करते हैं, लेजर टर्मिनोलॉजी, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें ताकि हम लेजर के टर्म में बात करना शुरू करें, क्योंकि अभी तक सारा इंट्रोडक्शन हो गया, मैकेनिज्म हो गया, बहुत सारी बातें हमने इसमें कर लिया। तो अब हम लेजर के टर्म में डायरेक्ट उतर जाते हैं। तो कुछ टर्मिनोलॉजी जो लेजर में यूज किया जाता है उसको डिस्कस कर रहे हैं, और बहुत ध्यान से उसको लाइन बाय लाइन लिखते जाना। ये 60 आंसर क्वेश्चंस में 1 या 2 नंबर में तुमको पूछा जा सकता है। तो वी हैव सम टर्मिनोलॉजी यूजिंग लेजर, ये कंडीशन को अपन डिस्कस करते हैं उसके साथ ही। So terms used in this chapter in laser. Laser में कुछ terms जो यूज किया जाता है उसका अपन थोड़ा डिस्कस करें। फर्स्ट वन इज एक्टिव सेंटर, सेकंड एक्टिव मीडियम, ये टर्म्स यूज में आता है लेजर में, एक्टिव मीडियम। थर्ड पॉपुलेशन, ऐसे पॉपुलेशन मुझे फर्स्ट लिखना चाहिए था, पॉपुलेशन, आई शुड स्टार्ट फ्रॉम पॉपुलेशन। तो फर्स्ट वन इज पॉपुलेशन, सेकंड इज एक्टिव सेंटर, थर्ड इज एक्टिव मीडियम, एंड द फोर्थ वन इज pumping technique, and the fifth one is population inversion. So these are the terms, इसको one by one हम inversion. First one is population, active center, active medium, pumping technique, and population inversion. ये 5 terms को हम डिस्कस करते हैं, और इन्हीं टर्म्स के बेसिस पर हम हमारा सारा एक्सप्लेनेशन हम करेंगे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस थिंक अबाउट पॉपुलेशन। तो दिस इज द टर्म used in laser. Population means total number of atoms present at any specific energy level. यहाँ पर N1, ये जो N1 मैंने कहा है, इसको मैंने कहा कि these are the atoms, numbers of atoms present at ground state. N2 मैंने कह दिया हायर एनर्जी लेवल पर N2 एटम्स प्रेजेंट है। इन नंबर ऑफ एटम्स जो है इसी को पॉपुलेशन कहा जाता है। मींस पॉपुलेशन इन द ग्राउंड स्टेट इज N1, पॉपुलेशन एट हायर एनर्जी लेवल इज N2. So the what is population? Population is total number of atoms present at any specific energy level. Any energy level. Energy. So the total number of atoms present at any energy level, इसको कहा जाता है population. एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हो, और what are the examples? So the population at ground state is N1, population at excited state is N2. हो जाए तुरंत बताना। Is it clear? आयुष? Yes, sir. हाँ बोले बेटा, what is population? Sir, number of photons present in a specific energy point. Energy levels. तो Energy level. photons नहीं, हाँ ये number of atoms है ना, number of atoms
ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स जो किसी स्पेसिफिक एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट होते हैं, है ना, उसको कहा जाता है पॉपुलेशन। वेरी गुड गुणनिधि। गुणनिधि बोलो जल्दी। Request time. Jagrit. Yes, sir. What is population, beta? So number of atoms present in every energy levels in each. Okay. Okay, so total number of atoms present at ground state या any specific energy levels, that is known as population. So example तुम लिख सकते हैं n1 at ground state and active center. अब एक्टिव सेंटर किसको कहते हैं? क्या होता है कि एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में एटम्स के ट्रांजिशन हो रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा कि n1 एटम्स में थे या n1 पॉपुलेशन में से पूरे के पूरे n1 एटम्स हायर एनर्जी लेवल पे जा रहे हैं। मैं हर बार ये बोला हूं कि ग्राउंड स्टेट में जितने एटम्स हैं, आउट ऑफ n1 एटम्स n2 एटम्स आर एक्साइटेड अप टू हायर एनर्जी लेवल। तो सारे एटम्स नहीं हैं, तो जितने एटम्स ये डिफरेंट ट्रांजिशन में पार्टिसिपेट करते हैं उसको कहा जाता है एक्टिव सेंटर्स। सो द एक्टिव सेंटर्स आर those atoms taking part in different transition। ये डिफरेंट ट्रांजिशंस में जितने एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं उसको कहा जाता है एक्टिव सेंटर्स। सो दिस इज n2 आउट ऑफ n1। n1 में से n2 एटम्स जो कि डिफरेंट ट्रांजिशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, that is known as active center। जितेंद्र कुमार बोलो भाई, व्हाट इज एक्टिव सेंटर? लिखो जल्दी और बोलते जाओ। Give the attendance within 1 minute। सर ओल्ड रोल नंबर से चाहिए ना? यहाँ ओल्ड नंबर्स, मैं ओल्ड नंबर से ये कर। ओके, सो बोलो कौन सा हो, बताओ भाई, व्हाट इज एक्टिव सेंटर? सर ये क्लियर नहीं है, एक बार फिर से बता दें। इसलिए तो मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ भाई, अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। सर जो कि बोर्ड, सर बोर्ड ध्यान अच्छे से सुन। दिखता नहीं सर। अगर आवाज अगर तुम ध्यान से अगर सुनते हो तो तुम लिख सकते हो। एक चीज को मैं 3 से 4 बार रिपीट करता हूँ, हाँ, इसलिए ध्यान से सुनो भी। और जो चीज मैं लिख रहा हूँ उसको मैं साथ साथ बोलते भी जाता हूँ। तो अगर नहीं दिख रहा तब तुम लोग लिख सकते हो, बस ध्यान रहना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। So the active center, this is the second terminology used in laser. What is this? This is those atoms taking part in different transitions। इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव सेंटर। तो जितने एटम्स डिफरेंट ट्रांजिशन में पार्टिसिपेट करता है उसको एक्टिव सेंटर कहा जाता है। एग्जांपल में क्या हो रहा है? आउट ऑफ n1 एटम्स n2 एटम्स जो है वो डिफरेंट ट्रांजिशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। सो n2 आर द एक्टिव सेंटर्स। ये n2 को एक्टिव सेंटर्स कहते हैं। नाउ द एक्टिव मीडियम, अभी जो बाकी रह गया एटम्स कितने? n2 तो डिफरेंट ट्रांजिशन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये n2 n1 n2 कितने एटम्स बाकी है? रिमेनिंग एटम्स। ये एटम्स जो है वो एक्टिव मीडियम कहलाता है। सो द एटम्स not taking part in any transitions are known as एक्टिव मीडियम। जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो एक्टिव सेंटर, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है वो एक्टिव मीडियम है। ओके, सो अब ये एक्टिव मीडियम
तो इसका रूल क्या है? अगर ये एक्टिव मीडियम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो ये क्या काम करता है? ये एक्टिव सेट को होस्ट करके रखता है। तो पहला इसकी प्रॉपर्टी ये है, इट वर्क्स एज अ होस्ट फॉर एक्टिव सेंटर। ये एक्टिव सेंटर के लिए होस्ट का काम करता है। So it works as a host for active center. पहला प्रॉपर्टी इसकी एक्टिव मीडियम का। सेकंड, अगर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी, दिस क्रिएट्स द बेस। So second, this creates the base for laser. ये लेजर के लिए फाउंडेशन का काम करता है, रूट का काम करता है, बेस का काम करता है। तो दिस क्रिएट्स अ बेस फॉर लेजर। ये लेजर के लिए बेस का काम करता है। मतलब ये कितना क्रूशियल पार्ट है। थर्ड, अगर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी अगर कोई रिलीज हो रहा है, एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हो रहा है तो उसको वो एब्जॉर्ब करता है। तो दिस एब्जॉर्ब्स एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज्ड, एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज्ड। तो ये तीन मेन रोल है इसके। पहला, ये तो अपने किसी प्रकार के किसी ट्रांजिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन दिस इज वर्किंग एज अ होस्ट फॉर द एक्टिव सेंटर। ये एक्टिव सेंटर को संभाल के रखता है। दिस इज वर्किंग एज होस्ट फॉर द एक्टिव सेंटर। सेकंड, दिस क्रिएट्स द बेस फॉर लेजर। ये लेजर के लिए बेस का काम करता है। जब हम टाइप्स ऑफ लेजर पढ़ेंगे या तुम लोग मुझे प्रेजेंटेशन दोगे उसके लिए, है ना। सो दिस क्रिएट्स द बेस फॉर लेजर। तो ये लेजर का बेस काम बेस की तरह करेगा। और साथ ही साथ अगर कुछ भी एक्स्ट्रा एनर्जी अगर कहीं से रिलीज हो रहा है तो उस एक्स्ट्रा एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करने में काम कर रहा है। सो दीज आर द थ्री मेजर रोल्स ऑफ दिस एक्टिव मीडियम। दैट्स व्हाई दिस एक्टिव मीडियम इज नोन एज हार्ट ऑफ लेजर। इसलिए इसको हार्ट ऑफ लेजर कहते हैं। दिस इज हार्ट ऑफ लेजर। तो एक्टिव मीडियम इज द हार्ट ऑफ लेजर। चलिए, यहां तक क्लियर हुआ? I have only 1 minute. यस सर। Next one is the pumping technique. अब ये जो पंपिंग टेक्निक है, ये एनर्जी गिविंग टेक्निक है। ये जो प्रोसेस होता है उसको पंपिंग कहते हैं। हम एटम को पंप कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल पे, ट्रिगर कर रहे हैं। तो जिस मेथड से, जिस एनर्जी गिविंग मेथड से हम उसको पंप करते हैं उसको कहा जाता है पंपिंग टेक्निक। सो द पंपिंग टेक्निक्स are energy giving technique. This is energy giving technique to pump the atoms from one level to other. तो एक लेवल से दूसरे लेवल में किसी एटम्स को पंप करने के लिए जिस मेथड से एनर्जी दिया जाता है उसको पंपिंग टेक्निक कहते हैं। So that is the energy giving technique and the crucial part of laser. So this depends on type of laser. अलग-अलग लेजर के लिए pumping technique अलग-अलग होता है। So first for solid state laser, जिसमें हम लोग रूबी लेजर, एंडी याग लेजर, ये दो प्रकार का लेजर होता है। इसमें रूबी लेजर हमारे सिलेबस में है। इसमें पंपिंग टेक्निक होता है। पंपिंग टेक्निक इज xenon और रेडॉन फ्लैश ट्यूब। xenon या रेडॉन फ्लैश ट्यूब इसमें यूज किया जाता है। सेकंड, गैसियस लेजर में है हीलियम नियॉन लेजर एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेजर। ये गैसियस लेजर होते हैं। इसमें से हीलियम नियॉन लेजर तुम्हारे सिलेबस में है। इसमें पंपिंग टेक्निक यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक आर्क मेथड। So electric arc method. And the third one is semiconducting laser. Semiconducting laser. और इसमें होता है गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फोरस आर्सेनाइड। इसमें पंपिंग टेक्निक यूज किया जाता है डायरेक्ट कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लेजर।
इसमें डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल बैटरी लगा, बटन दबाओ, लेजर निकलना शुरू, डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लेजर. सो दीज आर डिफरेंट पंपिंग टेक्निक्स. सो जो एनर्जी गिविंग टेक्निक्स है, इसमें हमारे पास जो दो कंडीशन था, उन दोनों कंडीशन में से सेकंड कंडीशन को हम इससे फुलफिल कर सकते हैं. सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस फर्दर अबाउट दैट लेजर ऑब्टेनिंग कंडीशन, कि हम उसको किस प्रकार से अटेंड करते हैं. एंड आई थिंक वी आर 2 minutes late. I'm sorry. So thank you all. Now you can leave for the next class.